recording. Hmm. So, what is a wrong picture in accounting? Wrong picture means that, let's say, either you are increasing your expense, or sometimes you can also decrease your expense, or you can increase your income, or you can decrease your income, or you can increase your assets, or you can decrease your assets. और भी दो मेथड्स है, either you can increase your liabilities or you can decrease your liabilities. There are different ways. देखो ये फाइनल अकाउंट्स है ना, प्रैक्टिकली वेरी रेलिवेंट चीज है, एंड it is very important in practical life to understand these final accounts. Final accounts is very easy, इसको टैली करना 100% पॉसिबल है. अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट इज इक्वल, तो इन द बैलेंस शीट ऑल्सो टोटल ऑफ एसेट्स एंड liabilities has to be equal. I also told you that we prepare balance sheet as on year end, and in balance sheet we have liabilities and assets. And please note, these liabilities and assets का जो final total है, this total has to tally. It means that total of assets has to be equal to the total of liabilities, and it has to match. Match means it has to tally. एंड इसीलिए अकाउंटिंग का एक जो पावरफुल सॉफ्टवेयर है, उसका नाम उन्होंने क्या रखा है? टैली. ओके, व्हाई द नेम इज टैली? बिकॉज ये टैली होना चाहिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज मैच होने चाहिए, एंड इसीलिए सॉफ्टवेयर का नाम है टैली. क्योंकि इन दिस सॉफ्टवेयर यू पास जर्नल एंट्रीज जिसमें डेबिट क्रेडिट इक्वल है. इट मीन ट्रायल बैलेंस भी खुद भी बना लेगा जिसमें डेबिट क्रेडिट इक्वल है, फाइनल अकाउंट्स भी खुद भी बना लेगा, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज डेबिट एंड क्रेडिट विल बी equal. So I hope now you are able to understand this concept provision. So provision for depreciation क्या होता है? You can write another example. Provision for bad debts. Okay, or it can also be called provision for doubtful debts. Okay, yeah, it is also called reserve for debtors. There are different names. Okay, or reserve for debtors, या फिर it is also called bad debts reserve. So this actually means that it is the possible loss which may arise out of non recovery of some amount from our debtors. ओके, सो डेटर से हमेशा 100% अमाउंट नहीं मिलता है, इंडियन बिजनेस की ये रियलिटी है. सो पॉसिबल लॉस है, एंड इट इज एस्टिमेटेड. ये एस्टिमेट किया जाता है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस. इट मीन्स ये जो खर्चा है, इट हैज टू बी, ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे भी गेस कर लो 10% 20%. नो, इट हैज टू बी एस्टिमेटेड. मेहनत करनी पड़ेगी, एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कि ऑन एन एवरेज कितने डेटर्स से कितना लॉस होता है. सो
ये भले एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है, लेकिन सिंस इट इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, तो कैन आई से एज गुड एज इसके होने के चांस ज्यादा है? यस, देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस के we are not able to recover even some percentage this year. So hence it is called bad debts reserve or provision for doubtful debts. So ये estimated है, खास ध्यान रखना है. It is estimated. So what is the difference between bad debts? So bad debts is the actual loss. Bad debts is the actual loss. But provision for bad debts, is this the actual loss or estimated loss? It is estimated loss. Now whenever there is an expense, okay, bad debts is expense, so what is the journal entry that we pass when there is expense? Bad debts के लिए which is the journal entry? Bad debts account debit. And which asset will decrease due to bad debts? Debtors. Okay, so bad debts account debit to debtors account, this is the journal entry when there is bad debts. अब चलो, आप में से जो भी स्कॉलर्स है, जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, what is the journal entry that we pass when we do provision for doubtful debts? डेप्रिसिएशन में हमने सीखा था, कुछ वैसी जर्नल एंट्री है. Bad debts to provision for bad debts account. Bad debts account debit to provision for bad debts account. Okay, so ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, उसको क्रेडिट किया, एंड दैट्स अ गुड थिंग. ओके, सो हियर in journal entry one thing is very clear. We'll write like this: to provision for bad debts. Provision is actually probable loss. Okay, and अब देखिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट. अब क्या होगा कि बैड डेट्स को डेबिट करने की जगह पर हम क्या है, देखो बैड डेट्स इज अल्टीमेटली व्हाट? बैड डेट्स इज अल्टीमेटली एन एक्सपेंस. एक्सपेंस को हम कहां पर लिखेंगे? पीएनएल अकाउंट. तो we can debit profit and loss account directly. Nature is same. So प्रोविजन का मतलब है आप अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रोवाइड करते हो, कुछ पैसे अलग रखते हो ताकि वो लॉस हो सकता है. प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस. सो यहां पर वी फॉलो द सेम कंसेप्ट. पहले हमने डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किया था, तो डेप्रिसिएशन खर्चा था. तो याद रखो यहां पर कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट समझो. ओके, सो वेदर आई डेबिट बैड डेट्स या मैं डेबिट करता हूं पीएनएल अकाउंट, दोनों में कोई फर्क नहीं है. ओके, अभी आपको लगेगा, बट प्लीज नोट, सीए की तरह सोचो. बैड डेट्स खर्चा है, जो भी खर्चे हैं वो सब कहां पर आते हैं? लुक हियर, पीएनएल अकाउंट. जो भी एक्सपेंसेस है वो सभी एक्सपेंसेस कहां पर आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. तो बैड डेट्स भी यहां पर ही आया है, लुक हियर. लेकिन जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो हम डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं पीएनएल अकाउंट में. इसका मतलब है कि प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड पे रख देते हैं, क्योंकि देयर आर चांसेस दैट कि उतने पैसे नहीं मिलेंगे. सो हेंस यू शुड नोट डाउन दिस एंट्री प्रॉपरली. कोई भी प्रोविजन क्रिएट करते हो तो यू शुड नो पीएनएल को डेबिट करना है एंड प्रोविजन को क्रेडिट करना है. प्रोविजन इज हैविंग द क्रेडिट बैलेंस. ओके, एंड प्रोविजन डायरेक्टली चार्ज किया जाता है पीएनएल अकाउंट में, एंड हेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर हम लिखते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. अब क्या है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा. देखो एक मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, बट आई नो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर
कोई स्टूडेंट सोचे कि सर बैड डेट्स को आपने डेबिट किया है, ओके, एंड यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है उसको तो मैंने क्रेडिट किया है, बट फिर भी अल्टीमेटली तो वो पीएनएल अकाउंट में ही आ रहे हैं, पीएनएल अकाउंट में दोनों ही डेबिट साइड पर आ रहे हैं। तो उसका रीजन समझो, क्या होता है आफ्टर दिस, ये जो बैड डेट्स है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ओके। सो दिस इज द फंडामेंटल कि बैड डेट्स जो होता है वो अल्टीमेटली ईयर के एंड में ट्रांसफर किया जाता है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब सिचुएशन समझो, कैन आई से बोथ आर गेटिंग ट्रांसफर्ड इन पीएनएल अकाउंट, यस और नो? हेलो, अब कंसेप्ट क्लियर है, वेदर इट्स अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या फिर इट्स अ बैड डेट्स, दोनों ही डेबिट किया जाता है इन विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड हेंस वी शो whether it's a bad debts or it's a provision for bad debts in profit and loss account. Okay, now I have shared with you one file. Just a minute, I will discuss this format again so that you can get comfortable. There is one problem. Just a minute. So now you must be comfortable with the format, and I will share with you the format which is given in your textbook. So I need your attention. Okay, so are you able to see this format of trading account? It is very important. Okay, so this is the format of trading account. So you will be provided with the trial balance, and we prepare trading account for a particular year ending on a particular date. So here we have incomes and here we have expenses, but these are direct expenses. And I will discuss few important items. Sales minus sales return was already discussed. Now this is very important. Scrape sales. नाउ कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रैप सेल्स? हेलो, थोड़ी बातें तो करो, आई एम गेटिंग बोर्ड। ओके चलिए, नो नॉट एन इश्यू। स्क्रैप सेल्स, please note all, let's say in case of a factory, many times some raw materials or some goods are sold as a scrap because these are damaged products. So cost of production will be lower due to this. It may be, let's say कि machinery or it may be goods. So क्या होता है कि ये trading account will give you cost of goods sold. Trading account will give you cost of goods sold. तो when you sell something as a scrap, तो आपका जो cost है वो बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, ओके। सो जो भी आइटम है जो कॉस्ट को इंक्रीज करती है, दैट वी रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड, एंड द आइटम्स विच
will reduce the cost of production that we will record on the credit side. तो scrap sales, it means sale of scrap, and we know that कुछ आपने scrap में sell किया तो overall आपका जो cost of production है वो reduce होना चाहिए. So hence it is credited. So you should note down this item. Then closing stock was already discussed, and whatever is the closing stock that you should write. Now here they have written abnormal loss of stock. अब इसके पीछे एक साइंस है. Okay, abnormal loss. Now there are two types of loss: normal loss and abnormal loss. Now here what we do, कि whatever gross profit which we find, ये जो gross profit आपको यहाँ पर मिलेगा एंड में, it is the normal gross profit. It is the normal gross profit. Okay. अब try to understand what is the abnormal loss. Abnormal का मतलब है कि ये कोई normal नहीं है. Okay. इट इज अनएक्सपेक्टेड, ये जनरली नहीं होना चाहिए. एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, लेट्स से लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर. ये देखो, अब जो मैं बता रहा हूं ना वो बहुत फंडामेंटल बातें बता रहा हूं जो काफी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है. स्टूडेंट को क्या है, बस छापना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कौन सा कहां पर लिखना है और बस मार्क्स लाने हैं. बट सिर्फ उतना करने से यू डोंट बिकम गुड अकाउंटेंट. ओके, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है. अकाउंटेंसी इज नॉट दैट मच इजी, बट अगर इंटरेस्ट लो तो इट्स वेरी इजी. सो आई वॉज रिफरिंग टू दिस लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर. तो कैन आई से फायर इज नॉर्मल इवेंट और एबनॉर्मल इवेंट? एबनॉर्मल इवेंट. एबनॉर्मल इवेंट. अच्छा, ये गुड्स जो फायर में जल गए हैं वो गुड्स क्या आपके परचेसिस में आए होंगे या नहीं आए होंगे? आए होंगे. होंगे. आए होंगे. परफेक्ट. तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो परचेसिस है उसमें दोनों टाइप के गुड्स है बराबर. एक नॉर्मल गुड्स भी है जो फायर से जले नहीं है, और इन गुड्स जो फायर से जल चुके हैं उसको मैं नाम देता हूं एबनॉर्मल गुड्स. ओके, एबनॉर्मल गुड्स ब्रैकेट में लॉस्ट बाय फायर. लॉस्ट बाय फायर, ये एबनॉर्मल गुड्स है. नाउ अब ध्यान से समझो, अगर मैं यहां पर फायर में जो गुड्स जल चुके हैं उसको मैं डेबिट करता हूं, ओके, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा या नहीं होगा? माय ग्रॉस प्रॉफिट विल बी लोअर और नॉट? ये फायर वाले गुड्स की बात कर रहा हूं. अगर फायर वाले गुड्स को मैंने ट्रेडिंग में डेबिट में लिख दिया, डेबिट साइड में कुछ भी लिखते हो तो प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है? कम होगा. कम होता है. वेरी गुड, परफेक्ट आंसर. देखो, फायर के गुड्स हमने डेबिट किए हैं इसीलिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है. ओके, बट कैन आई से ये फायर का जो इवेंट है वो तो एबनॉर्मल है, एंड एबनॉर्मल इवेंट की वजह से हमारा जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम नहीं होना चाहिए. ओके, थोड़ी मैं दिमाग वाली बात करता हूं, जिसको ना समझ में आए तो पूछ ले. Okay, so abnormal goods are debited in trading account, and due to abnormal goods our gross profit is lower. क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस हमने एक्चुअली में माइनस कर दिया है. बट एबनॉर्मल गुड्स की अकाउंटिंग अलग होनी चाहिए, एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग अलग होनी चाहिए. हमारे शेयर होल्डर्स को ये ग्रॉस प्रॉफिट कम नहीं दिखना चाहिए, वरना शेयर होल्डर्स को लगेगा कि हम बिजनेस बराबर नहीं कर रहे हैं. ध्यान से समझो, ये सब दिमाग वाली बातें हैं. तो अकाउंट के कंसेप्ट ये कहते हैं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल वाला होना चाहिए. तो अब क्या करें, ये ग्रॉस प्रॉफिट कम हो चुका है ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस, तो क्रेडिट साइड पर ये लिखा जाता है ताकि इसकी इफेक्ट जीरो हो जाए. पता नहीं कितने जन समझ पाए हैं. मैं फिर से रिपीट करता हूं. एबनॉर्मल गुड्स की वजह से
मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है एंड ये ग्रॉस प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए क्योंकि शेयर होल्डर्स को नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट बताना है, और अगर नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट बताना है तो फिर इसकी रिवर्स इफेक्ट देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जो डेबिट साइड पे लिखा है उसकी रिवर्स क्या होगी, क्रेडिट साइड पर लिखो। तो व्हाट आई विल डू कि ये क्रेडिट साइड में लिख दूंगा मैं। ओके, मान लेते हैं 1 लाख के गुड्स फायर से जल चुके हैं, तो 1 लाख वाले गुड्स परचेस में डेबिट थे और 1 लाख के गुड्स मैंने एबनॉर्मल लॉस, पूरा के पूरा लॉस था। ओके, सेल में भी कुछ नहीं आया, तो पूरा का पूरा 1 लाख अगर मैं क्रेडिट में लगता हूं तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट में कोई इफेक्ट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। No. इन दैट केस ये 1 लाख कैंसिल हो जाएंगे और मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ना ही ज्यादा होगा ना ही कम होगा, और वो बन जाएगा नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये अकाउंट का कंसेप्ट समझो। लॉसेस को हम क्यों यहां पर बताते हैं, ये रीजन काफी कम जन को पता है। ओके, सो फिर से वन मोर टाइम मैं रिपीट करता हूं। ओके, सर बोलो। सर ये एबनॉर्मल लॉस है, रिटर्न आउटवर्ड के नीचे भी तो लिख सकते हैं लेस करके। यस, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, अल्टीमेटली कैसे आप लिखते हो इट इज अप टू यू। हाँ, लेकिन याद रखो उसको यहाँ पर क्रेडिट साइड पे बताना है, क्रेडिट में से माइनस नहीं करना है, अदरवाइज तो रॉन्ग अकाउंटिंग हो जाएगी। ओके, सो यू शुड मेंशन हियर, या तो आप क्रेडिट साइड में बताओ, ये बेस्ट वे है। अगर क्रेडिट में नहीं डेबिट में बताते हो तो क्रेडिट वाली चीज डेबिट में माइनस की तरह जाती है। नाउ आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में ही बताना बेटर है। इफ यू विश टू शो ऑन डेबिट साइड तो डेबिट में आप ये परचेसिस में से माइनस कर सकते हो। ओके, बट ये तरीका Yes, ज्यादा sir. चलता है। ओके, अब देखो रिटर्न आउटवर्ड्स, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है, सॉरी रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न। अंदर आया है गुड्स, सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट बैलेंस है, बट सेल्स रिटर्न इज विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस। और याद रखो Debit balance. क्रेडिट साइड पर जब डेबिट बैलेंस आती है तो वो माइनस की तरह आती है। ओके, हियर ऑल्सो सेम एग्जांपल, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न इज क्रेडिट बैलेंस, तो डेबिट साइड पर क्रेडिट बैलेंस आ गई इसलिए वो माइनस साइन में आती है। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर। कैरेज इनवर्ट बता दिया। फैक्ट्री का पावर इज डायरेक्ट एक्सपेंस, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा, नॉट इन पीएनएल अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम ही दे दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। सो आई होप दिस फॉर्मेट इज क्लियर टू एवरीवन। ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने पूरा डिटेल में बताया है। आई विल टेक मोर टाइम इन दिस चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी फंडामेंटल। So see you in the next session. We'll discuss format of profit and loss account और उसके बाद हम start करेंगे simple adjustment. So we have more than a month for this chapter. Okay, bye bye. Mark your attendance sir. in the group. Yes.